Hey students, good morning and a very warm welcome to today's class. As you all know that this is your English class and today we are going to do the very first section, that is section A, reading. This is the most important thing in language English, and if you are not able to read something, you will not be able to understand something, you will not be able to write something, and you will not be able to speak something if you are not able to read. That is why this section has been given what it is given a section A. अगर ये इतना अनइम्पोर्टेंट होता तो इसको भी सेक्शन बी या सी या डी बना देते, बट इसे कौन सा सेक्शन बनाया गया? इसे सेक्शन ए बनाया गया. दैट मीन्स इट समवेयर हैज इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन. Okay, so now when we are talking about it, so see the guidelines for the unseen passage, and when it comes to reading section A, it's all about unseen passages. And unseen passages, you know that in your exam you are going to get a passage that is unseen for you. आपने नहीं कभी पहले देखा, that is हो सकता है नहीं देखेगा ये मतलब नहीं है, maybe somewhere you must have gone through it, but it is not from your syllabus structure. It's not from the chapter that you have gone through that particular syllabus. ठीक है, इट्स नॉट फ्रॉम एनी ऑफ योर बुक्स. जो अभी आपके बुक्स आपके उस क्लास की पर्टिकुलर बुक्स हैं वो सब उसमें से नहीं है. इट्स फ्रॉम समवेयर वी डोंट नो. तो ये आपके लिए क्या होता है? इट्स अनसीन, अनदेखा, जिसको हम बोलते हैं. आपने नहीं पहले इसको कभी देख रखा. इट्स जस्ट एन अनसीन फॉर यू. नाउ सी, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स व्हाट? कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग. इट्स पर्पस इज टू टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ द पैसेज एंड देयर कैपेसिटी टू कम्युनिकेट देयर अंडरस्टैंडिंग इन देयर ओन वर्ड्स. द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल रीडिंग. नाउ सी, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू गेट अप रीडिंग पैसेज, तो आप उसको पढ़ते हो, आप उसको समझते हो, राइट? समझोगे तभी तो आप उसका आंसर कर पाओगे. सो व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, दैट मीन्स यू आर गोइंग थ्रू द रीडिंग सेक्शन. And its purpose is what? Its purpose is to test the student's ability, then how well the student understands the main theme of the passage and their capacity to communicate their understanding in their own word. And उनकी capacity of what? That how they understand the thing in their own words and how they are going to communicate it. एक बार आपने passage देख लिया, ठीक है? Once you read the passage, once you go through the passage, now it's up to you कि आप उस passage को पढ़ने के बाद में उसको कैसे समझे. And now you have some questions below it. अब आपने उसमें कैसे communicate किया अपने thoughts को जो आप समझे. The following points should be kept in mind while reading. जब आप पढ़ते हो while reading, these are some points that you have to keep it in your mind. Now see, read the passage silently. Passage को बहुत ही silently आप पढ़ोगे. Read the passage in grammatical units. While reading, underline the keyword, phrases, lines which are related to the question. Guess the meaning of unfamiliar or difficult words from the context. Consult dictionary if required. Know the question types and stick to the word limit. Change the form of the word. Rephrase an expression or use an alternative sentence structure to meet the requirement of the answer. Manage time to comprehend the text well, to write rough answers, check their validity and revise them, and then fail them. And now study the example carefully and follow the suggestion given to complete the passage that you have. Okay. Now see, इन्होंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं? They have told few, we can say इन्होंने आपको 6-7 कुछ lines दी हैं. देखो, सबसे पहले just imagine that it's your exam time and you have got a passage. What you are going to do? You are going to read the passage silently. चुपचाप passage को एक reading दोगे. In general, I know students don't give reading because students are in a habit. जब से passage किया है, read the question, find the same line, answer आएगा. इसीलिए क्या होता है? Sometimes you are also writing the same thing, other person is also writing the same thing. एक का correct जा रहा है, एक का incorrect जा रहा है. You know what's the reason? Answer तो same ही होगा ना, answer तो उसी line में मिलेगा. But the difference between you and that person is that you have as it is, आपने वहां से line उठाई, यहाँ पे लिख दी. Along with the unwanted words joined in that sentence, हमें जो नहीं चाहिए थे. And the other person एकदम टू द पॉइंट हैज पिक्ड आउट द आंसर एंड उसको उन्होंने अपने हिसाब से कम्युनिकेट किया है, इंटरप्रेट किया. दैट इज व्हाई दे गॉट द मार्क्स एंड यू डिडंट. तो ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि ऐसा क्यों है. ठीक है, नाउ सी यहाँ पे क्या है? सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू गॉट द पैसेज, यू आर गोइंग टू रीड द पैसेज साइलेंटली. आप क्या करोगे? एकदम साइलेंटली उसको पढ़ोगे.
रीड द पैसेज इन ग्रामेटिकल यूनिट्स, आप ग्रामेटिकली उसको पढ़ोगे, दैट इज आप ये देखोगे इट्स प्रेजेंट, इट्स पास्ट, वो क्या है क्या नहीं है, तो यू आर गोइंग टू गो थ्रू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, आप ऐसी चीजों को उसमें नोटिस करोगे। देन आफ्टर दैट जितना भी ग्रामेटिकल पार्ट आपने पढ़ा, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। समझने के बाद में व्हाट यू आर डूइंग, दैट व्हाइल रीडिंग, जिस वक्त आप उसको एक रीडिंग दे रहे हो, आप रीडिंग देते देते क्या करोगे, यू नो, ये हमारी एक हैबिट होती है, वी आर इन अ हैबिट। अब आपकी हैबिट है वो कि नहीं है, आई डोंट नो, बट दैट शुड बी योर हेडिंग, होनी चाहिए। और वो क्या होती है, दैट व्हाइल रीडिंग हमें एक आदत बनानी चाहिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड, इंपॉर्टेंट लाइन्स, यू शुड कीप ऑन हाईलाइटिंग देम। एक हाइलाइटर जैसी एक चीज होती है ना, वो हाइलाइटर क्यों होता है आपको पता है, हम उस हाइलाइटर को लाते हैं जस्ट फॉर स्टाइल, दैट मेरे पास भी हाइलाइटर है, बट यू नो इट हैज यूज ऑफ इट्स ओन, उसका अपना एक यूज है। एंड व्हाट इज द यूज, दैट कीप ऑन हाइलाइटिंग द इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो दैट आपको बार बार उसको लुक बैक नहीं करना पड़ेगा। एंड वंस जब भाई आप कोई चीज अंडरलाइन करते हो ना, आप उसको ऐसे याद रखो नहीं रखो, बट इन अ सेक्शन ऑफ योर माइंड वो चीज जो है वो क्या होती है, स्टेबलाइज हो जाती है। सो व्हेन द थिंग इज रिपीटेड, आपको याद आता है, ओके आई हैव मार्क्ड दैट वर्ड समवेयर, मैंने इसको अंडरलाइन तो किया था। So while reading, underline the keywords, underline the phrases, and underline the lines which are related to the questions. Now guess the meaning of the unfamiliar or difficult words from the context. Now you are going to have some, अब ऐसा तो है नहीं कि इस दुनिया में जितने भी words हैं, everybody knows the meaning of every word. No. Being a teacher, also me also have to sometimes look up to dictionary for a word sometime, because I am in, we can say I am encountered with such kind of words जो मेरे को भी नहीं मालूम. So first of all what I do, I just try to guess the meaning. हम क्या करते हैं, उसका मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। If I am telling you just something, आप मेरी बात को नहीं exactly नहीं समझ पाए, बट आप क्या करते हो, मेरे कहने के तरीके से, मेरी बात से आप बहुत सी चीजें जज करने की कोशिश करते हो, then what actually she is trying to say. So क्या होता है, हम पूरी बात से ना कुछ चीजें जज कर लेते हैं। तो सेम थिंग हैपेंस हियर, यहाँ पे भी क्या हुआ, you don't know exactly what's the meaning of that particular thing, तो आपको exact meaning तो नहीं पता, but what you are going to do, you आप उसको पूरी लाइन को पढ़ के, पूरे स्टैंजा को पढ़ के, you are just going to guess the meaning of that difficult and unfamiliar word from the text. Consult the dictionary if required, dictionary को consult करो if it's required. Know the question type and stick to the word limit. ठीक है, क्वेश्चन टाइप्स को समझो एंड वर्ड लिमिट को स्टिक करके रहो। दैट इज इफ इट्स गिवन दैट आंसर इन वन लाइन, तो यू नीड टू आंसर इन वन लाइन। इफ इट्स रिटन, अगर ये कहीं पे ऐसा दिया जाता है दैट यू हैव टू आंसर इट इन 30 to 40 वर्ड्स, देन स्टिक टू द 30-40 वर्ड्स वाली वर्ड लिमिट। सो वट एवर द वर्ड लिमिट इज, स्टिक टू दैट वर्ड लिमिट, आपको उस वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। Change the form of a word, rephrase and expression or use an alternative sentence. अब क्या है, मैंने आपको क्या बोला, एक बच्चे ने as it is लाइन उठा के रख दी, एक ने उसको अपने तरीके से कम्युनिकेट किया। So this is the thing that you find a word, you get a phrase or an expression. Now क्या है, change the form of the word, rephrase the sentence or rephrase the expression and use alternative sentences structures to meet the requirement of the answer, so that ऐसा नहीं लगे that you have just cut, copy and pasted it over here. वहां पे क्या दिखना चाहिए, that you have done something of yourself, आपने उसको थोड़ा सा अपने वे में इंटरप्रेट किया है। Manage time to comprehend the text well, to write rough answers, check their validity and revise them and then share them. टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट इटसेल्फ हमें पता है दैट इन आवर डे टू डे लाइफ आल्सो वी नीड टू मैनेज टाइम। हमारे पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, दैट हाउ मच टाइम यू आर जस्ट गोइंग टू रीड दिस पैसेज, how much time you are going to write the answers in rough, then just give a revision, validate them, and then when it's finalized that your answers are correct, then you have to do fair them. तो उसको आप क्या कर लो, उसको आप फेयर कर लो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ये अगर आप केयरफुली कर लोगे तो व्हेन यू आफ्टर रीडिंग दीज लाइंस, व्हेन यू आर गोइंग टू मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स, जब आप अपने कुछ एग्जांपल्स देखोगे इसके, तब आप इसको फाइंड आउट करोगे दैट यस व्हाट पॉइंट्स आई हैव केप्ट इन माइंड, तो अल्टीमेटली वो पॉइंट्स मेरे काम आ गए।
Yes, see. So moving on further, कुछ टिप्स देखेंगे इफेक्टिव रीडिंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन की. नाउ यू कैन से कि मैम रीडिंग ले तो कई बार रीडिंग लेने के बाद में भी समझ नहीं आता है. क्या हम पैसेजेस करते क्यों हैं? व्हाट एक्चुअली इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग द अनसीन पैसेज? सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? You just do reading of unseen passages just to identify the main points from the text at one glance. एक ही बार में पढ़ के you just want to identify the main points from the text. So this is the first objective of the unseen passage. To understand the passage and pick out relevant details. आप पैसेज को समझते हो, उसमें से कुछ relevant details को pick out करते हो, and that is the main thing. To separate relevant information from irrelevant ones. आप separate करते हो relevant information को irrelevant से, तो वो भी एक चीज है. And you use word skills like word formation and inferring the meaning. Now, what you do जब आप आइडेंटिफाई करते हो मेन पॉइंट्स को फ्रॉम द टेक्स्ट एट वन ग्लांस, एंड सेकेंडली आप अंडरस्टैंड करते हो पैसेज को एंड पिक आउट करते हो द रेलिवेंट डिटेल्स, एंड द थर्ड इज आप सेपरेट करते हो द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इररेलिवेंट. आप ये देखते हो अब क्या होगा, मैंने सपोज आज आपको किसी चीज पे एक लेक्चर दिया, उसमें से हो सकता है 8-10 बातें मेरी ऐसी होंगी जो आपको लगेंगी बहुत काम की, एंड कुछ इधर उधर के एग्जाम्पल्स ये वो हमारे कौन से काम आने हैं, ठीक है, समझ लिया, छोड़ दिया. सो अगर आपको बोला जाए कि आज के इतने बड़े लेक्चर के लिखो, मेन पॉइंट्स लिख के लाओ, तो क्या आप एज इट इज पूरी हर एक बात लिखोगे? नहीं, यू आर जस्ट गोइंग टू राइट समथिंग रेलिवेंट दैट यू गॉट फ्रॉम इट. सो आप उसमें से क्या किया, यू जस्ट पिक आउट द रेलिवेंट डिटेल्स एंड यू सेपरेटेड द इररेलिवेंट वंस. And to use the word skills like word formation and inferring the meaning. The reading section of the book, it contains types of unseen passages. The purpose of introducing comprehension is to test the student's ability to understand the given text and to gather information and meaning from it. Passages जो होते हैं are of two types, namely what? Namely the discursive passage and the case-based factual passages. पैसेज जो आते हैं हमारे पास में वो दो तरह के होते हैं, वन इज द डिस्कर्सिव एंड वन इज द केस बेस्ड. ठीक है, डिस्कर्सिव जो होते हैं दे ऑलवेज कम फ्रॉम 400 to 450 वर्ड्स, ध्यान रखेंगे. एंड द सेकंड जो आता है दैट इज अ फैक्चुअल, इट इज फ्रॉम 200 to 250 वर्ड्स. ठीक है, नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इट हैज, उसमें मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है, उसके अंदर आपके पास में स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट द थिंग जो आपको दिमाग में रखनी है दैट इज द डिस्कर्सिव पैसेज जो होता है उसकी वर्ड लिमिट क्या होती है, 400 to 450. एंड द केस बेस्ड और फैक्चुअल पैसेज जो आपके पास में आएगा वो आएगा 200 to 250. तो दिस इज द थिंग जो आप अपने दिमाग में रखोगे. नाउ सी, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव सम टिप्स फॉर इफेक्टिव रीडिंग फॉर द कॉम्प्रिहेंशन. आपके पास में क्या है, कुछ टिप्स हैं इफेक्टिव रीडिंग की. ठीक है, तो सी, रीड द पैसेज एटलीस्ट ट्वाइस फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. पैसेज आया, पढ़ना है, कितनी बार पढ़ोगे? ट्वाइस, 2 बार. एक बार में अनसीन चीजें समझ में नहीं आती है. किसी अनजान इंसान से एक बार में मिलते हो तो क्या उसको समझ जाते हो? नहीं. क्या होता है, एक बार मिलते हो, दूसरी बार मिलते हो, एंड यू मेट अननोन पर्सन टुडे, अ स्ट्रेंजर टुडे, एंड आई आस्क यू कैसा है वो इंसान, तो व्हाट यू आर गोइंग टू से, मैं तो उसको आज पहली बार मिला हूं, मुझे यही नहीं मालूम था वो दुनिया के कौन से कोने में से आया, कहाँ रहता था, वो है कौन, अभी तो मैं उसे पूरा समझ ही नहीं पाया. सो हाउ कैन आई जस्ट टेल यू दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज दैट, कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कैसा नहीं है, तो मैं कैसे बता दूंगा आपको. So this is the thing that even to know a stranger you need to meet twice or thrice. So सोचो, जब वहां ऐसा हो सकता है तो यहाँ पे चीजें चेंज क्यों नहीं हो सकती? So same is the thing. The बात वही थी, unseen. That stranger was also an unseen thing for you, and here the passage is also an unseen passage for us. So see, तो आप इसको क्या करोगे, जब तक 2 बार नहीं पढ़ोगे ना, you are not going to completely understand what the passage actually wants to interpret. Try to extract the information from the passage and identify the theme of the passage. आपको क्या करना है, you have to extract the information from the passage. आप पैसेज में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करोगे एंड आइडेंटिफाई करोगे द थीम ऑफ द पैसेज. ठीक है, और पैसेज की जो थीम है उसे क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे. सो ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द पैसेज. इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कैसे करना होता है, बाय मार्किंग इट, बाय हाईलाइटिंग इट. तो आप उसको हाईलाइट कर दो. And you have to identify the theme of the passage.
Underline the relevant words and phrases in the passage which can help you to find an answer. Now you have to underline relevant words and phrases in the passage and which actually is going to help you to find an answer. जिससे क्या होगा? Ultimately you are going to find an answer. रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. क्वेश्चंस जो दिए हैं उनको, अब ऐसा भी नहीं है कि पैसेज 2 बार पढ़ लिया और फिर क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, नहीं. क्वेश्चंस को भी व्हाट यू हैव टू डू, क्वेश्चंस को भी आपको बहुत ही केयरफुली एक रीडिंग पहले जब आप क्वेश्चन को दोगे देन ओनली, बिकॉज मैंने आपसे पूछा व्हाट्स योर नेम. जब आप जैसे ही नेम पे जाओगे ना, आप फटाक से क्या बोलोगे कि हाँ ये तो मैंने कहीं पे मार्क किया था. दैट मीन्स यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस आल्सो ट्वाइस. This is a very common thing. Then when we are doing a reading section, that means हमें writing से ज्यादा फोकस किस पे देना है? रीडिंग पे देना है. बिकॉज रीडिंग जब एक टॉपिक है, दैट मीन्स अगर रीडिंग प्रॉपर होगी तभी उसको आप प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज नॉट. सो रीड इट ट्वाइस, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करो, आइडेंटिफाई करो द थीम ऑफ द पैसेज, रेलिवेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, फ्रेजेस को अंडरलाइन कर दो. Ultimately, those underlined words and phrases are going to help you to find an answer. Read the questions very carefully. Title should relate to the main idea of the passage and it should be brief. Sometime a title is asked to be given. ऐसा कहा जाता है, what can be the suitable title of the given passage? Unseen passage maximum time is just without a heading, without a title. And एक क्वेश्चन उसमें कहीं ना कहीं ये होता है that suggest a title of your own. Title suggest करो. So title should relate to the main idea of the passage and should be brief. Title कैसा होना चाहिए? It should relate to the main idea of the passage and it should be brief. Manage your time well. Allot certain time to every question and answer. अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करो. Certain time should be allotted to every question and answer. Develop reading habits and improve your vocabulary. Reading habits को develop करो, अपनी vocabulary को improve करो. Having good vocabulary makes you understand the comprehension in a much easier manner. अच्छी वोकैबुलरी कहने का मतलब यू शुड मेक इट अ हैबिट. रेगुलरली ना कुछ वोकैबुलरीज पढ़ने की कोशिश करो. स्टार्ट मेकिंग वोकैबुलरी कार्ड्स. दैट इज डेली यू हैव टू राइट डाउन 5 वर्ड्स. टेक अ डिक्शनरी, रैंडमली उसको ओपन करो. जैसे कि हम एक लॉटरी खोलते हैं ना, जस्ट लाइक अ लॉटरी, जस्ट ओपन अ पेज. whichever page gets open in the dictionary, उसी पेज पे से 5 वर्ड्स को नोट डाउन कर लो. इंटरेस्टिंग 5 वर्ड्स. Sentence बनाओ using those words, make a paragraph and that particular day try to put these words in your language. Communication, जो भी आप communication कर रहे हो, कोशिश करो कि जो आज के आपके 5 मैजिक वर्ड्स आए हैं ना, उन 5 मैजिक वर्ड्स को आप अपनी आज के दिन की बात में कहीं ना कहीं पे फिट करो. Use it twice or thrice in the whole day. कहीं पे भी उसको यूज कर लो 2-3 बार. तो देन यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. एंड दिस वे दिस इज अ वेरी गुड वी कैन से हैबिट एंड दिस अल्टीमेटली कैन इम्प्रूव योर रीडिंग हैबिट्स एंड योर वोकैबुलरी. एंड वंस यू हैव अ गुड वोकैबुलरी तो फिर आपके लिए रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. सो डेवलप अ रीडिंग हैबिट एंड रीडिंग हैबिट से ही आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है. एंड हैविंग अ गुड वोकैबुलरी इट कैन मेक यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंशन इन अ मच easier manner. So this way we can say we are quickly going to put these things on the highlights on the fingertips, that what you have to do, read it twice, read the passage twice, understand it well, extract the relevant information and irrelevant को बाहर निकाल दो उसमें से, identify the theme of the passage, relevant words, phrases सबको underline कर दो so that later on these are going to help you find your answers. Read the questions very carefully. Suggest a main title of the passage and it should be brief and it should be related to the passage. Manage the time well. Allot certain time to every question and answer. हर question and answer के लिए time allot करना. ऐसा नहीं है इसको तो जल्दी जल्दी कर लिया, दूसरे में 10 मिनट लगा दिए, नहीं. Develop a reading habit. Improve your vocabulary. And if you have a good vocabulary, it can make you understand the comprehension in much easier manner. हमारी गाइडलाइन हमें क्या कह रही थी? व्हाट एक्चुअली आवर गाइडलाइन वाज टेलिंग अस? आवर गाइडलाइन वाज सेइंग कि बहुत ही साइलेंटली उसको पढ़ोगे, ग्रामेटिकल यूनिट्स चेक करोगे, उसके कीवर्ड्स देखोगे, अनफेमिलियर वर्ड्स देखोगे. अनफेमिलियर वर्ड्स बिकॉज इन एग्जाम यू हैव एन अनसीन पैसेज एंड यू डोंट हैव अ डिक्शनरी.
to look up for the meanings. तो unfamiliar words को समझने का कुछ तो तरीका होगा. अब उसका तरीका क्या है कि जब आपको पूरा word exactly नहीं आता तो उसके आसपास के words को पढ़ो, उस sentence को 2-3 बार पढ़ो, उस पूरे paragraph को 1-2 बार पढ़ो, तो definitely कहीं ना कहीं आपको कुछ idea लग जाएगा that what actually it is. ये एक्चुअली में क्या है. तो थोड़ा सा आइडिया भी मिलने के बाद में हम चीजों को क्लियर कर सकते हैं. Now know the question type and stick to the word limit. आपको word limit ध्यान देनी है, question types पे ध्यान देना है. वर्ड की फॉर्म्स चेंज करो, रिफ्रेश करो एक्सप्रेशन को, अल्टरनेटिव सेंटेंसेस यूज करो, स्ट्रक्चर्स को यूज करो, सो दैट आपके आंसर के रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट हो सके, बट अलोंग विद दैट मीनिंग इज नॉट चेंज. मैनेज द टाइम वेल, गिव टाइम टू एवरीथिंग. रीडिंग को टाइम दो, अंडरस्टैंडिंग को दो. रफ आंसर्स लिखो, उनकी वैलिडिटी चेक करो, उन्हें रिवाइज करो, एंड व्हेन यू फाइंड दैट वो बिल्कुल सही है, देन जस्ट फेयर देम अप. तो ये चीजें जब आप कर लोगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अटेम्प्ट अ रीडिंग सेक्शन नाइसली. एंड सी, अनसीन पैसेज एक ऐसी चीज होती है, इट्स लक बाय चांस वाली बात है. If you get a good passage, if you have the tactics how to attempt it, and if you do it, तो उसके लिए कोई previous preparations की जरूरत नहीं है. Before your exam, just 2-3 passages को practice करो. It's not at all definite कि क्या passage आपके पास में आएगा. So just practice 2-3-4 passages and that's it. और उतने में आपको suppose देखो 10 to 20 मार्क्स के पैसेजेस होते हैं. सो ये तो एक तरह से ऐसा कह सकते हो कि थोड़ी सी सेंसिबिलिटी, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा टाइम अलॉटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छे से देते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर कंप्लीट. बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, क्वेश्चन आंसर जो बुक के होते हैं उसको तो याद करेंगे, याद रहा तो वहां अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं. पैसेज में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इट इज 110% श्योर कि आंसर तो आपके सामने ही है. नाउ इट्स योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ के उस आंसर को फाइंड आउट करना है, दैट्स इट. आपको कुछ भी पहले से लर्न होने की जरूरत नहीं है. एंड ये भी श्योरिटी है कि जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आंसर आपके सामने उसी पैसेज के अंदर है. ऐसा नहीं है कि पैसेज में आंसर नहीं है, उसी में है. नाउ जब आंसर आपके सामने है तो मार्क्स अगर आप लूज करते हो तो फिर तो ये बहुत गलत चीज हो जाएगी. सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड, सेंसिबिलिटी को यूज करते हुए अंडरस्टैंड इट एंड कम्युनिकेट whatever you have understand. And so while reading, keep patience, be silent, underline the important things and relevant things, and stick to the word limit and give the answer in a very fair and validate manner. Okay, so this is, we can say that this is all with this topic, that is unseen passage. I think you can now attempt unseen passage nicely. Now you all have your grammar books, उसमें बहुत से unseen passages है. Try to solve them, उन्हें solve करो, and then if you have any problem we can solve it कि उसका आंसर क्यों नहीं मिल रहा आपको. Okay, this is all for today's class. Now we'll be meeting tomorrow with newspaper report. Okay, so you all be present here.